Okay, good morning to class 10th. Once again, in this session, we are going to learn our next part, that is the apply cells and range of names. Apply cell and range of names. See, in the last session, we had studied the different settings. Now, today we are applying the names. Huh? Means if we have a work spreadsheet that contains the fruit names, vegetables names. huh? So if we want the total of only total fruits names, so and if we want the total of only all vegetables name, huh? So what we do, we are just apply the name to all fruits one name, and to all vegetables one name, and we get the total of all vegetables and all fruits. So this is one example, and we are trying to do the practical. Let us do the our practical, how we can apply the cell and range name to the all cells. See, open the spreadsheet. This is the spreadsheet I have already created. In this spreadsheet, what we have seen here serial number, groceries price list. In the groceries price list, there is the items and their cost. Huh? Items and cost are here. Which items are here? Apple, banana, cabbage, cauliflower, cherry, chili, cucumber. Means there is a mixed names of fruits and vegetables. There is a mixed names, fruits and vegetables. But what we have to do here, we are applying the names to all fruits, and we want the total of all fruits. So what we do, we choose the fruit names and we are applying the name to that fruits one name, and we are applying the names to the all vegetables. So what we can do, we just select, open the spreadsheet, select that fruits names and vegetables name. We go in the define name, define names groups in the formula tab. In the formula tab we have to go there, and we apply the new name to the all fruits. Okay, open the spreadsheet in the formulas tab. In the formulas tab, you apply the define name. In the define name here, have you seen here my cursor is moving here on the upper side? Here define names, you define name, apply the names. For that purpose, what you have to do, first you have to choose the fruit names, apple, and you have to continuously press the control key on the keyboard. आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना पड़ेगा जितने भी फ्रूट्स है उन फ्रूट्स के नेम्स को सिलेक्ट करने के लिए। हाँ, मैंने एप्पल पे क्लिक किया, कंट्रोल की मैंने दबा कर रखी हुई है। फिर मैंने बनाना पे क्लिक किया, फिर चेरी पे क्लिक किया, फिर ग्रेप, गवा, मैंगो, पाइनएप्पल, एंड आई रिलीज द कंट्रोल की। मैंने कंट्रोल की छोड़ दी। मतलब मैंने जितने भी फ्रूट्स थे उनको सिलेक्ट कर लिया। अभी सिलेक्ट करने के बाद मैंने फार्मूलाज पे क्लिक किया, डिफाइन नेम्स में गया, डिफाइन नेम्स पे क्लिक किया, डिफाइन नेम। यहाँ पर मैं उन फ्रूट्स को एक ही नाम दूंगा। सारे फ्रूट्स है इसलिए मैं उसको सिर्फ फ्रूट्स नाम दूंगा, फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स नाम दिए। और यहाँ पर रेफर्स, नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक लास्ट वाला बॉटम टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर रेफर्स टू। ये रेफर्स टू में मुझे उनका कॉस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट कहाँ पर है? ये वाला कॉस्ट है, ये उनका कॉस्ट मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अभी मैंने उनका कॉस्ट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद
मैं एंटर बटन दबा दूंगा। हाँ, तो इस तरह से वो कॉस्ट सिलेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पर मैं उस रेफरेंस सिलेक्ट करूँगा कॉस्ट के लिए, क्योंकि हमें टोटल निकालनी है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ओके नाम दिया। तो जितने भी फ्रूट्स के नाम थे उनको मैंने एक कॉमन नाम दे दिया, फ्रूट्स। फ्रूट्स करके नाम दे दिया। हाँ, सेम थिंग मैं वेजिटेबल्स के साथ भी करूँगा। इसमें वेजिटेबल्स का भी नाम है, इसलिए मैं वेजिटेबल्स को भी सिलेक्ट करूँगा। पहले वेजिटेबल्स 1, कॉलीफ्लावर, चिली, कुकुम्बर, जिंजर, देन पोटैटो। हम लोग नीचे जाएंगे, पम्पकिन, स्पिनच एंड टोमेटो। इस तरह से हम लोगों ने सारे वेजिटेबल्स को भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फार्मूलाज में जाएंगे, फिर से डिफाइंड नेम्स, डिफाइंड नेम देंगे, उसको एक नाम देंगे हम लोग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स अभी रेफरेंस में, यहाँ पर रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, वो रेफरेंस देंगे। रेफरेंस क्या देंगे हम लोग, उनका टोटल हमें चाहिए, तो टोटल के लिए हम लोगों को वहाँ पे रेफरेंस में देना पड़ेगा। हाँ, वेजिटेबल्स का। तो हम लोग कंट्रोल की दबा कर रखेंगे, वो उसका टोटल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये टोटल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। और ओके कर दिया। हाँ, मतलब हम लोगों ने जितने भी फ्रूट्स थे उनको एक कॉमन नेम दे दिया फ्रूट्स का, जितने भी वेजिटेबल्स थे उनको एक कॉमन नेम दे दिया वेजिटेबल्स का। अभी हमें क्या करना है, ये करने के बाद, अप्लाई नेम्स करने के बाद अभी हमें उनका टोटल निकालना है। हाँ, सबका टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, सम प्रेस करेंगे। सम, सम माने टोटल। हाँ, किसकी टोटल, ओपन ब्रैकेट करेंगे और इसमें लिखेंगे फ्रूट्स। हाँ, नीचे फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा था फ्रूट्स नाम का, और दूसरा अभी बनाया फ्रूट्स एस करके। तो हम लोगों ने वो सिलेक्ट किया। हाँ, वो सिलेक्ट करने के बाद, वो सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर उसको ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये देखिए जितने भी फ्रूट्स थे, हाँ, उनका जो कॉस्ट था यहाँ पर टोटल आ गया। तो टोटल कैसे आया, समझ में आया? हेलो? यस सर। हाँ, मतलब जितने भी फ्रूट्स थे उनको हम लोगों ने एक कॉमन नाम दे दिया, मतलब रेंज नेम, उसको कहते हैं अप्लाई द रेंज नेम। हाँ, हम लोगों ने रेंज नेम अप्लाई कर दिया और उसका टोटल हम लोगों ने ले लिया। हाँ, ये कब हम लोग करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है। हाँ, मतलब 100-150 लाइन का या 1000 लाइन्स का डेटा होता है, तब ऐसा सेल रेंज अप्लाई किया जाता है। हाँ, तो सेम अभी सेकेंड से सेल में हम लोग वेजिटेबल्स का करके देखते हैं। सम, सम हम लोगों ने टाइप किया, हम लोगों ने यहाँ पर वेजिटेबल्स, ये देखिए वेजिटेबल्स आ गए। वेजिटेबल्स पे हम लोगों ने क्लिक किया और वो ब्रैकेट क्लोज करके हम लोगों ने एंटर बटन दबा दिया। तो जितना भी वेजिटेबल्स का कॉस्ट था, हाँ, सारे वेजिटेबल का कॉस्ट वहाँ पर आ गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा टोटल निकाल सकते हैं। आया समझ में? मेरा स्क्रीन आपको लैपटॉप का स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये अप्लाई रेंज ये समझ में आया सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? नो। हाँ, चलो तो अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, दैट इज सेशन 8। सेशन 8 में क्या है? हाँ, क्रिएट, मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट्स। हाँ, हम मतलब चार्ट, चार्ट आप लोगों ने शायद आप लोगों को पता होगा कि हाउ टू मेक द चार्ट, और चार्ट क्या होता है। और चार्ट मैं शॉर्टकट में बताता हूँ चार्ट क्या होता है। और चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब वी कैन विजुलाइज अवर डेटा
ग्राफिकली। हाँ, मतलब एक पिक्चराइजेशन में हम लोग हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने, मतलब जो रीडर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनके सामने हम लोग ग्राफिकल के रिप्रेजेंटेशन में उनको दिखाते हैं, एंड इन विच द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉल्स सच एज बार्स। वो बार्स ग्राफिक्स में हम लोग दिखाते हैं, लाइंस ग्राफिक्स में हम लोग दिखाते हैं, और पाई चार्ट ग्राफिक में हम लोग दिखाते हैं। तो चार्ट कैन बी रिप्रेजेंट टेबुलर न्यूमेरिक डेटा एंड फंक्शन सम काइंड्स ऑफ क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर्स। हाँ, इसमें हम लोग दिखाते हैं। आया समझ में? हाँ, तो Yes, sir. इसके बाद अभी हम लोग उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ, सेम चार्ट मैंने अभी यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। हाँ, ओपन द स्प्रेडशीट। सी हियर इज द मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट्स। हाँ, यहाँ पर चार्ट मैंने क्या बनाया है देखिए, मैं थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ। हाँ, अभी क्लोज दिखाई दे रहा है। हाँ, हाउस रेंट, यहाँ पर नेम्स है और यहाँ पर मंथ दिए गए हैं, अलग अलग मंथ्स के नाम दिए गए हैं। हाँ, नेम में क्या है, हाउस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ग्रोसरी एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, और मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस है। और ये सारे हर एक मंथ का एक्सपेंसेस हम लोगों ने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा ग्राफिकली with the help of chart. How we can do? For that purpose we have to just type this all data and select the data. We just select the data. How we can select? See here, we can see in our format how we can see select the data just like here. First select the data in this way, select the whole data, then go in the data, sorry, where is that, insert, click on the insert tab. Here are the chart, different type of chart you can find out here. You just click on any recommended chart. Have you seen my mouse pointer is moving on the upside? You just click on any recommended chart. If you choose any one, click on that. Okay, now bar chart we have choose here. We have choose the bar chart. See how our chart is looking here. सबको चार्ट दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ पूरा डेटा हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। हम लोगों ने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को चार्ट्स में बहुत सारे चार्ट दिखाई दे रहे हैं। उसमें से रिकमेंडेड चार्ट में से हम लोगों को जो चार्ट चाहिए, मैंने बार चार्ट सिलेक्ट किया। बार चार्ट हम लोगों के सामने आ गया। अभी इस बार चार्ट में देखिए, बार चार्ट में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये एक वाई एक्सिस पे हमें सारा जितना भी हम लोगों का एक्सपेंसेस है वो दिखाई दे रहा है, और एक्स एक्सिस पे हमें सारे मंथ्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। और जो भी हम लोगों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बार चार्ट के ग्राफिक डिज़ाइन में हमें दिखाई दे रहा है। इफ़ यू वांट टू चेंज द चार्ट, डिफरेंट चार्ट, यू कैन चूज एनी वन। जो चाहिए वो चार्ट यहाँ पर आप लोगों को है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अभी इस चार्ट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है देखिए, यहाँ पर इस तरह से चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। अभी इस चार्ट में क्या क्या होता है यहाँ पर देखिए। फर्स्ट नंबर पे क्या है, चार्ट एरिया। जो फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे स्क्रीन पर, उसको चार्ट एरिया कहते हैं।
इस चार्ट एरिया में मैं थोड़ा इसको थोड़ा और कम कर लेता हूँ। अभी देखिए, अभी दिखाई दे रहा है ठीक से। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है, चार्ट एरिया, दिस इज द चार्ट एरिया ऑफ द चार्ट। हाँ, सेकेंड इज द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट। प्लॉट एरिया कहाँ पर, ये जो कंप्लीट दिखाई दे रहा है इसे कंप्लीट प्लॉट कहते हैं, प्लॉट एरिया। हाँ, जहाँ पर हम लोग ग्राफिकली शो कर रहे हैं। और सेकेंड ये थर्ड है डेटा पॉइंट्स दैट आर प्लॉटेड इन द चार्ट। थर्ड क्या है, डेटा पॉइंट्स। ये डेटा पॉइंट्स कौन से डेटा पॉइंट्स है, हाँ, ये वाले डेटा पॉइंट्स यहाँ पर। देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। आप लोगों को मैथमेटिक्स में तो होगा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, करेक्ट। तो द सेम वे इन द एक्स एक्सिस वी हैव द month's name, and in the y axis we have the expenses, correct. then legend of the chart 5 नंबर, यहाँ पर साइड में ये छोटा वाला जो डिटेल्स हमें दिखाई दे रहा है इसे लीजेंड कहते हैं। तो लीजेंड क्या करता है, हमें उन आइटम्स के नाम दिखाता है कि वो कौन से आइटम्स यहाँ पर यूटिलाइज हुए वाई एक्सिस पर। आया समझ में, हाँ, उसे कहते हैं लीजेंड। अभी चार्ट एंड एक्सिस ऑफ द टाइटल यूज्ड इन द चार्ट, यहाँ पे 6 नंबर पर, मतलब वो चार्ट किस टाइप का चार्ट हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं उसको चार्ट एंड एक्सिस टाइटल में। डेटा लेबल, यहाँ पर डेटा लेबल क्या दिखाई दे रहा है देखिए, फॉर आइडेंटिफाइंग डिटेल्स ऑफ डेटा पॉइंट इन द चार्ट 7 नंबर, अप साइड, यहाँ पर सॉरी अप साइड में यहाँ पर ये 7 नंबर expenses, this is the 7 number, the number is wrong there but that is the 7 number. This is all about the chart. Understand, here we can see the different charts name. See, have you seen there are different types of chart here. Which type of chart, a bar chart, column chart, line chart, pie chart, area chart and XYZ chart. They are used for the different purposes. What purposes they are using? See, bar chart. A bar chart, horizontal bar emphasizes the comparison between the items at a fixed period of time. अगर किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसी आइटम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए बार चार्ट यूज़ करते हैं। अभी हम लोग फिक्स आइटम, हमारे पास फिक्स आइटम है, जैसे कि हम लोगों ने फिक्स एक्सपेंसेस किए हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग बार चार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो फिक्स आइटम्स के लिए हम लोग बार चार्ट यूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप है कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट किस लिए यूज़ होते हैं? कॉलम चार्ट इज अनलाइक अ बार चार्ट टू विच इट इज़ ऑफन कंपेयर्ड emphasize where the over period of time. This chart also includes cylinder, core and pyramid subtype. मतलब सिलेंडर टाइप में, कोन टाइप में, पिरामिड टाइप में ये कॉलम चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या करता है, अगर किसी 2-3 चीज़ को हम लोगों को फिक्स टाइम में किसी वो जो डिटेल्स हम लोगों के पास है वो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंपेयर करना चाहते हैं, तब हम लोग कॉलम चार्ट यूज़ करते हैं। कौन सा टाइप का चार्ट यूज़ करते हैं? कॉलम चार्ट। अगर हम लोगों के पास जो भी रिकॉर्ड है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी हो रहा है, जो नंबर्स है हम लोगों के पास वो विद द टाइम वो वेरी हो रहा है, तब हम लोग कॉलम चार्ट यूज़ करते हैं। लाइन चार्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं? लाइन चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ द चेंजेस इन द डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो डेटा हम लोगों के पास है वो टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है, तब हम लोग लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा है, क्रिकेट मैच देखते हो आप लोग? हाँ, क्रिकेट मैच कोई देखता है क्या आप में से कोई? हेलो, सो गए क्या सब लोग? Yes, sir. हाँ, तो क्रिकेट मैच में देखिए, जब हम लोग रन रेट देखते हैं तो वो कौन से चार्ट में आता है? लाइन चार्ट में आता है। देखा है कभी? Yes, sir. हाँ, तो दैट मीन्स जो भी उनके पास डेटा है वो टाइम के हिसाब से चेंज होते जा रहा है, इसलिए वो लाइन चार्ट यूज़ करते हैं।
तो लाइन चार्ट उसी के लिए यूज किया जाता है। ये समझ में आया सबको? चलो, तो अगला है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कंटेंट्स जस्ट वन चार्ट डेटा सीरीज। ये एक ही सीरीज में अगर हम लोगों के पास एक टाइप का सीरीज है, हाँ, और हम लोग उसको टुकड़ों टुकड़ों में दिखाना चाहते हैं, मतलब हम लोगों के पास पूरा एक सीरीज है नंबर्स का, एक सीरीज नंबर ऑफ डेटा हमारे पास है, और हम लोगों को वो छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाना है एक ही प्लेस पर, तो हम लोग पाई चार्ट यूज़ करते हैं। राउंड शेप में वो कट कट करके हम लोग उसको दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। उसे पाई चार्ट कहते हैं। एरिया चार्ट, एरिया चार्ट शोज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज ओवर द टाइम। मतलब वो रिलेशन दिखाता है, सिर्फ नंबर्स का रिलेशन दिखाता है एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड एरिया चार्ट। सो दीज आर द डिफरेंट चार्ट्स वी कैन यूज इन आवर स्प्रेडशीट। तो आप लोगों को जो चाहिए वो चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। आया समझ में? तो चार्ट में चार्ट कैसे अप्लाई करते हैं, उसको विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। कृष्णल, प्रसाद, कोई प्रॉब्लम है चार्ट में? हेलो कृष्णल, प्रसाद, कुछ तो बोलो। कोई प्रॉब्लम है चार्ट में? चार्ट कैसे अप्लाई किया जाता है? सिर्फ हमारे पास जो डेटा होता है उसको सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, जो चार्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करो, वो उस टाइप का चार्ट आपके सामने अप्लाई हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है। हाँ, बाकी कुछ नहीं होता है उसमें। सिर्फ उसके अगर कलर बिलर चेंज करने हैं तो उस पर राइट क्लिक करके आप लोग उसका चेंज टाइप, कलर बिलर ये सब चेंज कर सकते हो, वो सब आ जाता है उसमें, अलग कलर में, अलग टाइप में। हाँ, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ, हम लोग सेशन 9 देखते हैं। सेशन 9, सेशन 9 में क्या है? अरे सेशन 9, हाँ, सॉर्ट and filter the data. Sort and filter the data. Sorting, you know, ascending and descending, we can sort our data. And what is filter? मतलब फिल्टर क्या होता है? फिल्टर में हम लोग, अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से सिर्फ पर्टिकुलर डेटा हमें सिर्फ स्प्रेडशीट में दिखाना है और बाकी को हाइड कर देना है, तो उसे कहते हैं फिल्टर। और सॉर्टिंग मतलब टू मेक असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब ए से लेके जेड से जेड तक और जेड से लेके ए तक, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है। सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करना हमारे डेटा को, और फिल्टर मतलब बहुत सारा डेटा है उसमें से सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के डेटा ही सिलेक्ट करना और बाकी डेटा को हाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। सो वी कैन डू द प्रैक्टिकली। सी, here sort and filter. I had already typed the data, serial number, region, sales in 2008, sales in 2009, sales in 2010 and sales in 2011। इस तरह के सेल्स हैं, और कौन से रीजन में, मतलब कौन से प्लेसेस पर, चेन्नई रीजन, कलकत्ता रीजन, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, इन अलग अलग रीजन्स पर ये हम लोगों का डेटा 2008 में, 2009 में, 2010 में और 2011 में हम लोगों ने सेल आउट किया हुआ है। हाँ, तो उसके नंबर्स हमारे पास है। तो इस डेटा को अगर हमें सॉर्टिंग करना है तो सॉर्टिंग कैसे अप्लाई किया जाता है? सॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस कॉलम को सिर्फ सिलेक्ट करो। अभी मैंने बी नंबर का जो कॉलम है रीजन, उसको मैंने सिलेक्ट किया। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पर क्लिक करूँगा।
होम टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में सॉर्टिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, ये सॉर्टिंग पे मैंने क्लिक किया, A to Z, मैंने A to Z पे अभी यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर पे चेन्नई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे चेन्नई है, सेकंड नंबर पे कलकत्ता है और थर्ड नंबर पे मुंबई है। अभी अगर हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं रीजन के हिसाब से तो ये सॉर्ट हो जाएगा। हाँ, A to Z पे हम लोगों ने क्लिक किया, एक्सपांड द सिलेक्शन, मतलब पूरा एक्सेल शीट को आपको सॉर्ट करना है या सिर्फ उसी कॉलम को सॉर्ट करना है। अगर नीचे वाले इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ बी कॉलम सॉर्ट होगा, बाकी के कॉलम एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहेंगे। हाँ, अगर हम लोग ऊपर वाले एक्सपांड द सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो पूरा शीट जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स क्या होंगे, सॉर्ट होंगे। हाँ, अभी हम लोगों ने पहला वाला सिलेक्ट किया और सॉर्ट किया, A to Z, Z to A। ओके, ये देखिए ये सॉर्ट हुआ। पहले चेन्नई सबसे ऊपर था, अभी न्यू दिल्ली ऊपर आ गया। हाँ, मतलब इस तरह से हम लोगों ने उसको सॉर्ट किया। अभी फिर से इसको उल्टा करके देखते हैं। हाँ, फिर से उसको सिलेक्ट किया, सॉर्ट में गए, A to Z, A to Z पे क्लिक किया, एक्सपांड द सिलेक्शन और सॉर्ट किया। ये देखिए अभी चेन्नई सबसे नीचे था वो ऊपर आ गया। तो इस तरह से पूरा रो सिलेक्शन हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा अलग अलग कलर देते थे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, ये मैंने इन दो रो को अलग कलर दे दिया है। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉर्ट में ही जाता हूँ। हाँ, अभी मैं फिर से Z to A पे क्लिक करता हूँ। हाँ, एक्सपांड द सिलेक्शन, ये देखिए मतलब पूरा एक्सेल शीट सॉर्ट हो रहा है। पहले येलो कलर नीचे था वो ऊपर आ गया है। हाँ, अभी अगर हमें सिर्फ पर्टिकुलर एक ही कॉलम को सॉर्ट करना है तो अभी हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने C कॉलम पे क्लिक किया, मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया। अभी मैं क्या करूँगा कि इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हाँ, मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, करंट सिलेक्शन। अभी सेकेंड ऑप्शन मैंने चूज किया। यहाँ पर क्या होगा, अभी वो सिर्फ उसी कॉलम को सॉर्ट करेगा, बाकी कॉलम्स को वो हाथ नहीं लगाएगा। देखिए वन सेकेंड है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर उसने सिर्फ इसी कॉलम को सॉर्ट किया। हाँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बाकी कॉलम एज इट इज़ वैसे कि वैसे यहाँ पर है। मैंने क्या किया, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं उसी रेंज को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने वो वाला शीट सिलेक्ट कर लिया जो कॉलम मुझे सॉर्ट करना है, सिर्फ वही कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ उसी कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर मैं सॉर्ट में गया। यहाँ पर मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक किया, सेकेंड ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया और इसको सॉर्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हुआ, लेकिन बाकी सारे कॉलम एज इट इज़ जैसे कि वैसे ही है, वो सॉर्टिंग नहीं हुए। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर वो डिफरेंस हमें दिखाई देता है जब हम लोग सॉर्ट करते हैं। आया समझ में? हाँ, अभी हम लोग देखेंगे फ़िल्टर, हाउ टू डू द फिल्टर, फ़िल्टर कैसे किया जाता है। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वो
एक रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। हाँ, हम लोगों ने एक रो सिलेक्ट की, उसी पर हम लोग जाएंगे, होम टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर से सॉर्टिंग में जाएंगे, यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। हाँ, फिल्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हाँ बॉक्स आ गए हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये ऐसे। हाँ, ये देखिए, उस एरो पे अगर आप क्लिक करते हो तो एक पॉपअप विंडो आपके सामने आता है, बराबर। हाँ, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, मैंने वो सिलेक्ट ऑल का टिक निकाल दिया। हाँ, अभी मैं सिर्फ 70 पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ 70 का जो भी रिकॉर्ड है वही मुझे दिखाई देगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। ये देखिए, मैंने 70 पे क्लिक किया, सिर्फ 70 वाला रिकॉर्ड हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है, बाकी रिकॉर्ड हाइड हो गए। दिस इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग, इसे फिल्टर कहते हैं। टू फिल्टर दी रिकॉर्ड, मतलब जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें चाहिए उसी को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। ये देखिए, मैं फिर से करता हूँ। हाँ, मैंने 70 पे क्लिक किया, मुझे 1000 वाला भी चाहिए। हाँ, मैंने 1000 पे भी क्लिक किया और मैंने ओके किया, तो देखिए 1000 और 70 दोनों आ गए। मतलब जो जो चाहिए, हाँ, सिर्फ उस पर टिक करो, वही आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा, बाकी रिकॉर्ड हाइड हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग दोनों समझ में आए हैं? इसमें कुछ दिक्कत है किसी को? नो सर। हाँ, वेरी गुड। अभी हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, सेशन 10। सेशन 10 में देखिए क्या है, कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट। मतलब आपको आपका डेटा कैलकुलेट करना है वर्कशीट के साथ। अगर ये यहाँ पर एक वर्कबुक, जब आप एक्सेल शीट ओपन करते हो तो एक एक्सेल शीट में जब कोई न्यू वर्कशीट ओपन होता है तो उसके साथ वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, ऐसे बहुत सारे वर्कशीट हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए। हाँ, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर वर्कशीट 1 में कुछ डेटा है, वर्कशीट 2 में अलग डेटा है, और उसी दोनों वर्कशीट का डेटा मुझे एक कॉलम में लेना है, उनको दोनों को जोड़कर, दोनों वर्कशीट का डेटा मुझे जोड़कर एक कॉलम में लेना है, तो हम लोग कैसे लेते हैं? दैट इज कॉल्ड कैलकुलेट द डेटा अक्रॉस द वर्कशीट। अक्रॉस द वर्कशीट मतलब अलग अलग वर्कशीट का। देखिए, हाँ, हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग रीजन का डेटा हम लोग लेंगे। हाँ, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, ऐसे अलग अलग वर्कशीट हमारे पास है। हाँ, तो उनका डेटा हम लोग एक वर्कशीट में कैसे ले सकते हैं, हाँ, वो प्रैक्टिकल हमें करके देखना है। हाँ, हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, अलग अलग वर्कशीट होंगे, उन अलग अलग वर्कशीट का डेटा एक वर्कशीट में कैसे लाया जा सकता है। देखिए, लेट अस डू द प्रैक्टिकल। अभी यहाँ पर मैं एक वर्कशीट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक प्लस बटन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरा माउस कहाँ पे मूव हो रहा है, यहाँ पर मैं एक प्लस बटन दबाया, एक वर्कशीट यहाँ पर आ गया। हाँ, इस वर्कशीट पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2, वर्कशीट 1 पे मैंने क्लिक किया, वर्कशीट 2 पे, यहाँ पर मेरा माउस दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2, ये दोनों का डेटा मुझे, ये सबसे लास्ट वाला वर्कशीट जो है शीट 1, इसमें मुझे लेना है। तो मैं कैसे ले सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्कशीट 1 में क्या है। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है, या स्टूडेंट का मार्क्स है, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस। हाँ, और वर्कशीट 2 में क्या है, हाँ, यहाँ पर कुछ मेटल्स का प्रोडक्शन है। हाँ, तो ये दोनों डेटा मुझे एक वर्कशीट में लेना है, तो मैं कैसे लूँगा। हाँ, तो मैं जिस वर्कशीट में मुझे डेटा लेना है उसको ओपन करूँगा, वहाँ पर मैं इक्वल टू साइन डालूँगा। क्या डालूँगा, कौन सा साइन डालूँगा, इक्वल टू, बराबर। इक्वल टू साइन डालने के बाद मैं क्या करूँगा,
उस वर्कशीट पे क्लिक करूँगा जो जहाँ से मुझे डेटा लेना है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैंने ये वाला इंग्लिश का फर्स्ट मार्क्स मैंने सिलेक्ट किया, वहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, हाँ, ऊपर ऊपर वाला जो एड्रेस बार है, यहाँ पर माउस दिखाई दे रहा है मेरा, यहाँ पर जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से उसको क्या करूँगा, प्लस दबाऊँगा, प्लस बटन दबाने के बाद मैं फिर से वर्कशीट 2 पर क्लिक करूँगा। ये वर्कशीट 2 ओपन हुआ। यहाँ पर देखिए कॉपर, हाँ, कॉपर का जो नंबर है, हाँ, C3 में, यहाँ पर क्लिक करूँगा, हाँ, C3 पे क्लिक करने के बाद मतलब C3 सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं एंटर बटन दबा दूंगा, एंटर बटन देखिए, हाँ, हम लोग जो सबसे लास्ट वाला वर्कशीट है शीट 1 उस पर आ गए, हाँ, उस पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या दिखाई दिया कि दोनों वर्कशीट का जो भी नंबर्स था उनका प्लस होकर ये वाले वर्कशीट पे आ गया। तो दोनों वर्कशीट का जो भी डेटा था ये वाले वर्कशीट पे आ गया। ये तो एडिशन हुआ। हम लोग नेम्स अगर हम लोगों ने टाइप किए तो वो नेम्स भी इसमें आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन डालो, उस वर्कशीट में जाओ, हाँ, यहाँ पर क्लिक करो और एंटर बटन दबा दो। ये देखो ये वाला नाम हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया क्या लास्ट वाले वर्कशीट में? नहीं, ये ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन इसका रेफरेंस जो है वो वर्कशीट फर्स्ट से आया, यहाँ से आया समझ में? तो ये शीट 1 में अगर इसको हम लोग कॉपी करते जाएंगे तो सेम थिंग, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और उसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं, हाँ, तो सेकेंड नेम आ गया, उसके नीचे और प्लेस करते हैं तो थर्ड नेम आ गया, उसके नीचे पेस्ट करते हैं तो चौथा नेम आ गया। मतलब वर्कशीट 1 में जितना भी डेटा है तो यहाँ पर वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हाँ। यहाँ पर ये हम लोगों ने रेफरेंस कैसे दिया, ये समझ में आया? इसमें कुछ प्रॉब्लम है? Yes, sir. हाँ, मतलब सिर्फ इक्वल टू साइन डालना है और जहाँ से डेटा लेना है उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लो और एंटर बटन दबा दो तो उस शीट से, शीट 1 से वो निकल जाएगा और जहाँ जिस शीट में चाहिए उस शीट में वो ऑटोमेटिकली रेफर हो जाएगा, शो हो जाएगा, हाँ। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटिंग डेटा अक्रॉस द वर्कशीट, हाँ। दो अलग अलग वर्कशीट से डेटा कैसे लेना, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. वेरी गुड। अभी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स, एंड लिंकिंग अ सेल। अभी हम लोग एक वर्कबुक में अलग अलग शीट पे काम कर रहे थे। अभी जो प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा वो एक ही वर्कबुक था, मतलब एक एक्सेल शीट हम लोगों ने ओपन किया था, उसमें अलग अलग शीट थे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे हम लोग नंबर ऑफ शीट्स बना सकते हैं एक वर्कबुक में, हाँ, हाँ। एक वर्कबुक कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटस बार पे मेरा माउस क्लिक हो रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये माउस मूव हो रहा है मेरा, हाँ। यहाँ पर मैंने एक्सेल पे ये इसको एक वर्कबुक कहते हैं, हाँ। अप साइड में देखिए ऑरेंज ब्राउन कलर का स्ट्रिप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ब्राउन कलर का स्ट्रिप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक वर्कबुक है, क्लास 10 का एक वर्कशीट मैंने ओपन किया, इसको एक वर्कबुक कहते हैं। अगर इस तरह के अलग अलग वर्कबुक हम लोगों ने ओपन किए हैं और वो अलग वर्कबुक से हमें डेटा निकाल कर एक वर्कबुक में लाना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसी तरह से। अभी मैं फिर से एक नया वर्कबुक ओपन करता हूँ। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, एक्सेल 2000 पे क्लिक किया, एक नया वर्कबुक ओपन हो गया हमारे सामने, हाँ, सीधा नया वर्कबुक, हाँ। अभी इस वर्कबुक में मुझे जो पहला वाला वर्कबुक है, ये देखिए क्लास 10 वाला, ये यहाँ पर ये क्लास 10 में, हाँ, क्लास 10 का ये जो वर्कबुक है, इसका डेटा मुझे ये बुक 1 में लाना है। तो
हाँ, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए। हाँ, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इक्वल टू साइन डालना पड़ेगा। इक्वल टू साइन डालने के बाद हाँ, हम लोगों को फार्मूलाज पे क्लिक करना पड़ेगा। कहाँ पर, फार्मूलाज पे। वन सेकेंड है। दो वर्कबुक ओपन करने के बाद हमें स्विच विंडो, व्यू टैब में जाना पड़ेगा, सॉरी व्यू टैब में जाना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने एक नया वर्कबुक ओपन किया हुआ है, बुक वन नाम का एक वर्कबुक है। हाँ, यहाँ पर इक्वल टू साइन डालने के बाद मैं व्यू टैब पे क्लिक करूँगा। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाँ, विंडोज़ में हाँ, विंडोज़ दिखाई दे रहा है, मेरा माउस मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्विच विंडो में दो वर्कबुक मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हाँ, जो जिस वर्कबुक पे हम लोग जो वर्कबुक हम लोगों ने ओपन किया हुआ है उसे बुक वन नाम है, और जो ऑलरेडी ओपन था उसको क्लास 10 नाम है। हाँ, क्लास 10 में हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है। हाँ, तो क्लास 10 का जो डेटा है वो हमें बुक वन में लाना है। हाँ, तो बुक वन में हम लोगों ने इक्वल टू साइन प्रेस किया, व्यूज़ में गए। व्यूज़ में जाने के बाद हम लोग स्विच विंडो पे क्लिक किया, क्लास 10 पे गए, सेकेंड वर्कबुक हाँ, उसका नाम है क्लास 10, उसमें गए। उसमें जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम लोगों ने एंटर बटन दबा दिया। ये देखिए, तो हम लोगों को बुक वन में वो वाला डेटा आ गया। मतलब दो अलग अलग बुक में से भी हम लोग डेटा ला सकते हैं। हाँ, फिर से हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, नीचे इक्वल टू साइन दबाया, स्विच विंडो में गए, क्लास 10 पे गए, दूसरे वाले वर्कबुक में गए। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर ऑटो फंक्शन पे क्लिक किया, ये वाले यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पर क्लिक इक्वल टू साइन करने के बाद इसमें गए। फिर हम लोगों को अगर ये वाला डेटा चाहिए तो यहाँ पर क्लिक किया, एंटर किया, तो ये देखिए यहाँ पे वो डेटा आ गया। तो अलग अलग वर्कबुक से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रेफ़र कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग ऑफ डिफरेंट वर्कबुक, यूजिंग अ मल्टीपल वर्कबुक एंड लिंकिंग अ सेल। तो हाउ टू लिंक अ सेल विथ डिफरेंट वर्कबुक, ये भी समझ में आया। जैसा पहला प्रैक्टिकल किया सेम प्रैक्टिकल ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है, वो हम लोग एक ही वर्कशीट में रेफ़र कर रहे थे, अभी यहाँ पर हम लोग अलग अलग वर्कबुक ओपन करके उनको रेफ़र कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आया सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, कृष्णल, प्रसाद, संकेत, कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। हाँ, मतलब सेम प्रैक्टिकल था, लेकिन एक इसमें हम लोग सिर्फ एक ही वर्कशीट पे काम कर रहे थे रेफरेंस के लिए, और अभी जो प्रैक्टिकल किया इसमें अलग अलग वर्कबुक हम लोगों ने ओपन किया हुआ था। हाँ, मतलब अलग अलग एक्सेल शीट। हाँ, एक एक्सेल शीट था बुक वन नाम का और दूसरा वर्कशीट था क्लास 10 नाम का। हाँ, ये अलग अलग थे, सिर्फ उसको क्या करना है, इक्वल टू साइन डाल के उनको रेफ़र करना है, उनका रेफरेंस देना है। हाँ, तो वो वाला डेटा इस वाले इसमें आ जाता है, और इसका भी डेटा वो वाले एक्सेल शीट में जा सकता है। हाँ, अभी अगला सेशन देखते हैं हम लोग, लास्ट वाला सेशन, दैट इज़ नथिंग बट द शेयरिंग अ वर्कशीट। शेयरिंग वर्कशीट इज़ जस्ट लाइक अ नेटवर्क। अगर आपके पास हम लोगों ने एक वर्कशीट बनाया सिर्फ क्लास 10 के लिए। हाँ, उसमें हम लोगों का क्या करना है कि प्रेजेंट ही डालना है, क्लास 10 के बच्चों का प्रेजेंट ही डालना है, बराबर। और क्लास 10 के बच्चे अलग अलग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ पर बैठे हुए वो, अलग अलग कंप्यूटर पे, कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं। अगर वो एक्सेल शीट मैंने बनाया प्रेजेंटी का और एक कंप्यूटर पे मैंने डाल दिया
और उसको मैंने शेयर कर दिया नेटवर्क पे। क्या किया मैंने, उसको शेयर किया। हेलो, नेटवर्क पे मैंने उसको शेयर किया। शेयर करने के बाद वो वर्कशीट सारे बच्चे शेयर कर सकते हैं। मतलब सारे बच्चे उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उनका प्रेजेंटी अप्लाई करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ वर्कशीट। तो वो उसके लिए क्या सेटिंग है, क्या करना पड़ता है, वो प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। देखिए, उसके लिए वर्कशीट ओपन करो। वर्कशीट ओपन करने के बाद वर्कशीट ओपन करने के बाद क्या करना है आपको देखिए, वर्कशीट ओपन करो। वर्कशीट ओपन करने के बाद क्लिक ऑन द शेयर वर्कबुक ऑप्शन अंडर द चेंजेस ग्रुप इन रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में जाके आपको शेयर वर्कबुक पे क्लिक करना है, चेंजेस ग्रुप में रिव्यू टैब। पहले वर्कशीट ओपन करो। वर्कशीट ओपन किया, फिर रिव्यू टैब, यहाँ पे अप साइड में रिव्यू टैब दिखाई दे रहा है। रिव्यू टैब पे क्लिक करो। रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद चेंजेस ग्रुप पे क्लिक करो। चेंजेस ग्रुप में यहाँ पे शेयर वर्कबुक, मेरा माउस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पे शेयर वर्कबुक पे क्लिक करो। शेयर वर्कबुक पे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम। इसको उसको चेक करो और ओके बटन दबा दो। उसको टिक करने के बाद ओके बटन दबा दो। ओके बटन दबाने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर ऑफ यूजर्स एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। जो भी चेंज होगा वो एट ए टाइम एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब 10 कंप्यूटर पे 10 बच्चे बैठे हुए, तो ये सेम वर्कशीट 10 बच्चे एट ए टाइम इसको यूज कर सकते हैं और वो जो भी चेंज होगा वो एट ए टाइम एक्सेप्ट किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ वर्कशीट। तो ये वाला सेटिंग समझ में आया, हाउ टू शेयर द वर्कबुक। सिर्फ क्या करना है, उस वर्कबुक को ओपन करना है, रिव्यू टैब पे क्लिक करना है और शेयर वर्कबुक पे जाके उसको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने से क्या होगा, ये वाला वर्कशीट हर एक कंप्यूटर पे शेयर हो जाएगा और हर एक बच्चा उस एक ही वर्कशीट को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, यूज़ कर सकता है और वो सब चेंजेस एक्सेप्टेबल होंगे। दिस इज द सेशन 12। इसमें सिर्फ इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, कल वाले सेशन में और आज वाले सेशन में? हाँ बच्चों, हाँ। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज है वो ट्राई करने का प्रयास करो। कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करो, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज का सेशन बोलो बेटा। चलो ठीक है, मैं उसका एक्सरसाइज आपको सेंड करता हूँ, उसके आंसर्स भी देने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, हम लोग अभी लॉग आउट होते हैं। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।